This is the problem that is given to you for assignment. We have 4 contractors and there are 4 works: assignment 1, assignment 2, assignment 3 and assignment 4, and we want to assign these tasks to 4 contractors: contractor 1, contractor 2, contractor 3 and contractor 4. In the table you are given the various costs associated with each contractor and the assignment. Now our objective is to assign the task to the contractors in such a manner that the total cost of assignment is minimized. Okay, all the 4 tasks should be assigned to at least one contractor and the total cost should be minimum. This is our objective. To use to solve this problem is known as Hungarian method, Hungarian algorithm also it is called sometimes. So first step here is to find the minimum from each row and subtract that value from the elements of that row. Like in the first row the minimum value is 13 and we subtract 13 from every element of that row. Similarly, in the second row, the minimum value is 11. We subtract 11 from every element of that row, and so on. So, for all rows, we will find the minimum value and subtract that minimum value from the rest of the elements of that row. So, we will get a reduced matrix. Here we have got zeros in all the rows, but we have 0 in first column, second column, third column, but there is no 0 in the fourth column. So what we do, we subtract the minimum of that column, that is in the column 4. The minimum value is 1 and we subtract this 1 from every other element of that column. So we will subtract 1 from 4, 2, 1 and 2. Every element of column 4, from every element of column 4 we will subtract 1, which is the minimum of that column. So in this way we will get the next reduced matrix. Okay, because in all other columns we had at least 1 0. Therefore we are not doing this particular step with other columns. Only those columns where we have no zeros, we will select that column and subtract the minimum value in that column from all the elements. Examine rows for single zeros. We see the first row, there we find a single 0, we assign that 0. Here we have shown the assignment with an asterisk sign. So the assignment 1 is assigned to the contractor 2. Now we move to the second row, there we find a single 0, we make an assignment, that is the contractor 1 is assigned the task 2. And moving on to the next row, we find that there are 2 zeros, so we will not make assignment here in the third row right now. And then we will move to the fourth row, here we find a single 0, we will make an assignment. So third contractor is assigned the fourth task. Now contractor 1 has been assigned a task, so it will be eliminated from our matrix. Contractor 2 is assigned a task, so it is also eliminated, and similarly contractor 3 is assigned a task, so it is also eliminated from our matrix. And assignment 1 का भी assignment 1 भी हो चुका है, असाइनमेंट हो चुका है, सेकंड का भी असाइनमेंट हो चुका है और फोर्थ का भी असाइनमेंट हो चुका है. तो ये सब हमारे मैट्रिक्स से एलिमिनेट हो गए हैं. सिर्फ हमारी कॉन्ट्रैक्टर 4 और असाइनमेंट 3 वाला लाइन बचा हुआ है. सो इसमें हमारे पास सिर्फ एक सिंगल 0 मिल रहा है, तो यहाँ पर हम असाइनमेंट कर देंगे. इन दिस वे हमारा असाइनमेंट कंप्लीट हो गया. असाइनमेंट 1 जो है सेकंड कॉन्ट्रैक्टर को हुआ, असाइनमेंट 2 जो है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्टर को असाइन हुआ,
असाइनमेंट 3 जो है वो आपका कॉन्ट्रैक्टर 3 को असाइन कॉन्ट्रैक्टर 4 को असाइन हुआ, एंड लास्टली असाइनमेंट 4 जो कि हमारे कॉन्ट्रैक्टर 3 को असाइन हो गया. We have to examine each row for single zeros and make an assignment. Whenever you find a single zero in any row, you make assignment there. After making assignment in that row, that particular row as well as column will be eliminated. And then we go on searching for single zeros. Once you have completed all the rows, you will search for single zero in the columns. And whenever you find single zero in a column, you will make an assignment there. जब कभी आप किसी रो या कॉलम में टास्क असाइन कर देते हैं, सिंगल जीरो को असाइन कर देते हैं किसी को, तो वो रो और वो कॉलम इलिमिनेट हो जाता है. और ये हम जो है प्रोसेस सिंगल जीरो असाइनमेंट का कंटिन्यूअसली करते रहते हैं. प्रॉब्लम. Here also there are few tasks and there are few people. A, B, C, D, E are people. 1, 2, 3, 4, 5 are the tasks which we want to assign to these people. Again, in the matrix you are given the cost associated with assigning tasks to each person. Our objective is once again to minimize the total cost. Okay. Moving on to the algorithm, Hungarian method to solve this problem. Now, after subtracting the minimum values from each row and minimum from each column, the reduced matrix that is obtained is shown in the slide. Here we will make zero assignments. We examine rows for single zeros. In the first row, we find a single zero, we assign it. Now moving on to the second row, again we find a single zero, we assign it. In the third row, we find that there are 2 zeros. So we are not making in the assignment in the third row right now. Now moving on to the fourth row. Here we find a single zero, but this third column has been assigned before, so it is eliminated. So we cannot make assignment in this column. Therefore, this has not been assigned. Moving on to the fifth row, we find that there are 2 zeros, so we are not making assignment right now. Now all the rows are complete. We move to find single zeros in the column. First column has a single zero, we make assignment in the third row and first column. Now moving on to the second column, there we find that there is a single zero, so we make an assignment there. Okay, so ये assignment हो गया हमारा second column का भी. लास्ट रो में हमने असाइनमेंट कर दिया. थर्ड रो हमारी ऑलरेडी इलिमिनेटेड थी. फोर्थ कॉलम हमारा इलिमिनेटेड था. इस तरह से फिफ्थ कॉलम में हमारे पास हम देख रहे हैं कि जो सिंगल जीरो है वो फिफ्थ रो में है, तो उसका असाइनमेंट फिफ्थ रो का असाइनमेंट ऑलरेडी हो चुका है. तो इन दिस वे आवर फाइंडिंग ऑफ सिंगल जीरोज टास्क इज ओवर. That we have made. Task A has been assigned to third person, A person has been assigned the third task, B person has been assigned the fourth task, C has been assigned the first task, E has been assigned the second task, but the D person has not been assigned any task, and our fifth task is also left for assignment. So in this way our assignment is not complete right now. Now we move to the further method. The zeros with minimum number of lines. मैट्रिक्स में जितने भी ज़ीरोज़ हैं उनको मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस से कवर करना है. आपकी लाइंस जो हैं
वो कम ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपका मैट्रिक्स का साइज 5x5 है, तो नंबर ऑफ लाइंस रिक्वायर्ड टू कवर ऑल जीरोज शुड बी लेस देन 5। 5 से कम होनी चाहिए, नहीं तो इसका मतलब अगर 5 हो जाती हैं, मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस टू कवर ऑल जीरोज अगर 5 होती हैं, तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट पॉसिबल है। जो हमारा पिछले स्लाइड्स में हमने देखा कि हमारा असाइनमेंट नहीं हो पाया एक पर्टिकुलर टास्क का, तो वो हमारे को दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि असाइनमेंट अगर हमारी लाइंस रिक्वायर्ड जो हैं जीरोस को कवर करने के लिए वो 5 हैं, तो इसका मतलब है कि असाइनमेंट पॉसिबल है। नाउ वी हैव tried to cover the zeros with minimum number of lines, and we find that 4 lines are sufficient to cover all zeros। 4 लाइन से हम सारे जीरोस को कवर कर सकते हैं। तो जीरोस को कवर करने के बाद हमने देखा कि जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उनमें सबसे छोटा क्या है। तो अनकवर्ड एलिमेंट्स क्या है? 2, 9, 9, 2, 1, 6, 3, 7 और 6, ये सारे हमारे अनकवर्ड एलिमेंट हैं, और इसमें से मिनिमम वैल्यू हमारी 1 है। तो इस 1 को हम सारे अनकवर्ड वैल्यूज में से माइनस कर देंगे, और जो इंटरसेक्शन पॉइंट हैं जहाँ पर दो लाइन आपस में मिल रही हैं, उन पॉइंट्स पर इसको ऐड कर देंगे। जैसे इस एग्जाम्पल में 3, 0, 2 और 1 क्या है? इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट्स में 1 जुड़ जाएगा, अनकवर्ड एलिमेंट्स से 1 माइनस हो जाएगा, और जो अदर एलिमेंट्स हैं वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। जैसे कि ये 0 हो गया, 4 हो गया, ये 0 हो गया, ये 6 हो गया, 8 हो गया, 0 हो गया। जो भी लाइंस से कवर्ड हैं पर इंटरसेक्शन पॉइंट पर नहीं है, वो वैसे के वैसे ही रहेंगे। इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर हम मिनिमम वैल्यू को जोड़ देंगे, और अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम वैल्यू माइनस कर देंगे। अनकवर्ड एलिमेंट को हमने माइनस कर दिया, उसके बाद अनकवर्ड एलिमेंट में से मिनिमम वैल्यू को माइनस कर दिया, और उसको इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर हमने ऐड कर दिया। उसके बाद हमारे पास जो रिड्यूस मैट्रिक्स आई, उसमें हम उसी तरह से असाइनमेंट करेंगे। फर्स्ट वी विल सर्च इन रोज, सिंगल जीरोज इन रोज, and if we find a single zero we will make an assignment there. Then we will search for single zeros in the columns, and if we find a single zero in the column we will make an assignment there. जब भी किसी रो और कॉलम में असाइनमेंट होगा तो उससे रिलेटेड रो और कॉलम मैट्रिक्स में से एलिमिनेट होते जाएंगे, और रिमेनिंग मैट्रिक्स में हम असाइनमेंट करते जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि फर्स्ट रो में हमें सिंगल जीरो मिल रहा है, तो हमने असाइनमेंट कर दिया। सेकेंड रो में 2 जीरोज हैं, थर्ड रो में हमें सिंगल जीरो मिला, असाइनमेंट कर दिया। फोर्थ रो में आए आप, तो एक सिंगल जीरो है पर वो थर्ड कॉलम हमारा पहले ही इलिमिनेटेड है, तो इसमें नहीं हो सकता। फिफ्थ रो में हमारे पास 2 जीरोज हैं, तो नहीं कर सकते। हम कॉलम्स को एग्जामिन करना शुरू करेंगे। फर्स्ट कॉलम में ऑलरेडी हमारा एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि असाइनमेंट हो चुका था। सेकंड कॉलम में आए, अगेन 2 जीरोज हैं, तो नहीं कर सकते। थर्ड कॉलम हमारा एलिमिनेट हो चुका है क्योंकि उसमें असाइनमेंट हो चुका है। फोर्थ कॉलम में आए तो यहाँ पर आपको सिंगल जीरो मिल गया, तो इसको आपने असाइन कर दिया। इसको असाइन करते ही आपकी फोर्थ कॉलम भी एलिमिनेट हो गया और सेकंड रो भी एलिमिनेट हो गई। मूविंग ऑन टू दी फिफ्थ कॉलम। फिफ्थ कॉलम में देखा आपने सिंगल जीरो मिल गया, उसको असाइनमेंट कर दिया। इसको असाइनमेंट करते ही आपकी फिफ्थ कॉलम और फिफ्थ रो दोनों एलिमिनेट हो गए। इसके बाद हमने देखेंगे कि हमारे सारे जीरोस तो एलिमिनेट हो चुके हैं और असाइनमेंट पूरा हुआ नहीं, सिर्फ 4 असाइनमेंट हुए हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो हम क्या करेंगे इसमें, अब अगेन हमें फिर से वही इटरेशन रिपीट करनी पड़ेगी। मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी टू कवर ऑल द जीरोज, एंड सबट्रैक्ट करना पड़ेगा जो मिनिमम वैल्यू है उसको अनकवर्ड एलिमेंट्स में से सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, और इंटरसेक्शन पॉइंट्स में ऐड करना पड़ेगा। 4 लाइंस ड्रॉ करी,
टू कवर ऑल द ज़ीरोज़, और अनकवर्ड एलिमेंट्स में से मिनिमम वैल्यू को हमने अनकवर्ड एलिमेंट्स में से माइनस किया, इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे जोड़ा, और उसके इंटरसेक्शन पॉइंट्स पे जोड़ा, और उसके बाद जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आया वो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है। ज़ीरो मिनिमम वैल्यू माइनस करने के बाद और उसको इंटरसेक्शन पॉइंट करने के बाद जो हमारा मैट्रिक्स आया उसमें हमने असाइनमेंट किया, सिंगल ज़ीरोज़ को फाइंड करने की कोशिश करी, जहां मिला वहां पर असाइनमेंट कर दिया, अगर नहीं मिला तो हमने आगे जाके देखा। तो ऐसा करने के बाद ये हमारा असाइनमेंट हुआ। यहाँ पर फिर हम देख रहे हैं कि हमारा जो ए है उसको कोई असाइनमेंट नहीं हो पाया। तो वी आर गोइंग टू मूव टू द again we are going to repeat the iteration. जो जीरोस थे उनको लाइंस से कवर किया, तो हमारे सारे जीरोस 4 लाइंस से कवर हो गए, और अनकवर्ड एलिमेंट्स में से हमने मिनिमम वैल्यू देखी जो कि 1 थी, यहाँ पर उसको 1 हमने सब में से माइनस कर दिया और इंटरसेक्शन पॉइंट्स में ऐड कर दिया। इन दिस वे वी अगेन गेट अ मैट्रिक्स। आया उसको हमने सिंगल ज़ीरोज़ को आइडेंटिफाई करते हुए असाइनमेंट किया। अगर कभी जब हमारे पास सिंगल ज़ीरोज़ अगर नहीं मिल रहे हैं और असाइनमेंट भी पूरा नहीं हुआ है और ज़ीरोज़ बचे भी हुए हैं, तो हम मल्टीपल ज़ीरोज़ का असाइनमेंट भी कर सकते हैं, जो इस केस में हमें लास्ट में करना पड़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।